Assalamualaikum students. In today's lecture, we are going to study about the dihybrid cross. In previous lecture, we have studied about the monohybrid cross and the definitions of the different genetic terminologies. But today, we are studying about the dihybrid cross. As the name suggests, the di means the two, hybrids as the hybrids which are the combination of two pure parents. But these hybrids are differing in टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. इस हाइब्रिड के पास दो पेयर्स हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ डाइहाइब्रिड. एंड द क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट डिफरिंग इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. अ क्रॉस, एक क्रॉस हो रही है किसके बीच में? पेरेंट्स के बीच में. एंड दैट पेरेंट्स आर हैविंग द टू डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. That kind of a cross is called as a dihybrid cross. That is the dihybrid cross. Let us take the example of the dihybrid cross. Dihybrid cross में क्या हो रहा है? Again, parents क्या हो रहे हैं? Cross हो रहे हैं. But these parents are differing in two pairs of contrasting characters. अब ये दो contrasting characters कौन कौन से हैं? Let us consider these two characters. The first character is the color of the seed. First character हम लोग लेंगे color of seed, and the second character is the shape of seed. Shape of seed. In the Mendel's experiments हम लोगों ने 7 characters देखे थे, plant height से लेके color of the plants तक. इसमें से second character है color of the seed, and the third character is the shape of the seed. In the color of the seeds, there are the two traits are present. In the color of the seeds, two traits are present. What are these two traits? These two traits are, the first one, the yellow is there, which is the dominant in nature, yellow. And the second one is the green, which is recessive in nature. Shape of the seeds. Shape of the seeds are the round, complete round, and some wrinkled shaped seeds are present. तो ये दो कैरेक्टर्स में ये दो ट्रेड्स प्रेजेंट है, एंड ईच ट्रेड्स आर हैविंग द वन स्पेसिफिक जीन्स. Let's take the example of yellow. Yellow is controlled by the capital Y. Okay, so the green was controlled by the small y. Another shape of the seed. This round is controlled by the capital R. The wrinkle is controlled by the small r. इस तरह से क्या होगा? These are the genes or the alleles which are controlling these traits. ये चारों ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, ये अलिल्स प्रेजेंट है. तो कंसिडर दीज टू कैरेक्टर्स. सो मेक आउट द पेरेंट्स डिपेंडिंग अपॉन दीज टू कैरेक्टर्स. अब हम लोग पेरेंट्स किस तरह से लेते हैं? अगेन स्टार्ट द क्रॉस. पेरेंट्स में हम लोग किस तरह से लिखते हैं? द फर्स्ट वन इज द फीमेल, द सेकेंड इज द मेल वन. This is the symbol of female. This is the symbol of male. Okay. Next हम क्या लेते हैं? About the phenotype. So what will be the phenotype of the female one? Mendel has first considered the phenotype of the female as the pure yellow round. Pure yellow round. Okay. And the male as a male लिया था उन्होंने about the male. Opposite to yellow is the green, and here round के लिए दिया था about the wrinkled one. So this is the phenotype. So both these are the pure for their characters. Next इसके बाद हम लोग लिखते हैं about the genotype. हम लोग क्या लिखते हैं इसके बाद? Genotype लिखते हैं. Yellow के लिए हम लोग लिखते हैं about the capital Y, capital Y, capital Y. Round के लिए हम लोग लिखते हैं capital R, capital R. Then for the green one, small y, small y. For the wrinkle, small r, small r. These are the homozygous for yellow, homozygous for round, homozygous for green, homozygous for wrinkle. तो इस तरह से क्या हो गए? मेल एंड फीमेल पेरेंट्स हो गए. These are the pure homozygous plants. These are the pure for yellow and round. These are the pure for green and wrinkle. So we have decided the phenotype. नेक्स्ट हम लोगों ने इसके हिसाब से जीनोटाइप भी लिख दिए हैं. नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? अबाउट द गैमेट्स आर देयर. सो व्हाट आर द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज टू yellow round and green wrinkle plants?
So here the gametes are the capital Y and capital R. From this pair, Y comes out. From this pair, R comes out. It becomes the Y and R. From this one, small y and small r comes out. And both these get fertilized. This is called as a fertilization. The fusion of gametes, okay, that is called as a fertilization. Just remember this process. And where the capital Y combines with the small y, capital R combines with the small r. लिखना इस तरह से हम लोगों को. That is the capital Y, small y, capital R, small r. Okay. But when capital Y and small y come together, only capital Y expresses itself. Capital Y ही अपने आप को क्या करता है? Express करता है. So the phenotype will become the yellow. Capital Y क्या impart कर रहा है? Yellow कलर impart कर रहा है. So it becomes the yellow. और जब capital R और small r पास में आ जाएंगे, कौन करेगा अपने आप को express? That is the capital R. So capital R क्या करेगा? Round color. So round shape impart करेगा. तो plants किस तरह से रहेंगे? Yellow seeds, round shaped seeds are there. So all the plants are having the yellow and round kind of a shape of the seed. So these kinds of plants are called as a F1 hybrid. और मैंने बताया था कि अब hybrid में एक कैरेक्टर है तो इसको हम लोग बोलेंगे mono hybrid. But here in the hybrid, two characters are there. That is the yellow and round for the shape of the seed and color of the seed. Two characters are there. That's why these F1 hybrids are called as a F1 dihybrids. So these are the F1 dihybrids because these hybrids are differing in two pairs of contrasting characters. That's why they are called as a F1 dihybrids. इस तरह से हम लोगों को F1 dihybrids मिल गए. हम लोग F1 dihybrids के बाद क्या करते हैं? F2 जनरेशन निकालते हैं. किस तरह से निकालते हैं F2 जनरेशन? F2 जनरेशन को हम F1 जनरेशन से ही क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं. That is the selfing of F1 generation. This is called as the selfing of F1 hybrids or F1 dihybrids. Okay? हम लोग क्या कर रहे हैं? इसकी सेल्फिंग कर रहे हैं, उसी को उसी से क्रॉस कर रहे हैं. अब क्या होने वाला है? F1 hybrids कौन कौन से हैं हमारे? That is the capital Y, small y, capital R, small r. Next, capital Y, small y, capital R, small r. इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? इसी के साथ क्रॉस कर रहे हैं. But remember, this hybrid F1 dihybrids are having the two heterozygous pair. So the gametes formed from these F1 hybrids, which are having the genotype, gametes formed by these F1 hybrid dihybrids, which are having the genotype capital Y, small y, capital R, small r. Okay? तो अभी gametes किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे? The gametes which are produced by this hybrids are, they are producing the gametes of the similar type, क्योंकि इनके जीनोटाइप सेम है. इनके गैमेट्स भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. लेकिन यहाँ पे गैमेट जो है चार टाइप के गैमेट्स रहेंगे. फर्स्ट गैमेट कैपिटल Y combines with कैपिटल R. ओके. नेक्स्ट कैपिटल Y combines with कैपिटल R. तो नेक्स्ट क्या रहेगा? कैपिटल Y combines with स्मॉल r. ओके. नेक्स्ट small y combines with capital R and small y combines with small r. तो इस तरह से क्या बन जाएंगे? यहाँ पे चार gametes बन जाएंगे. Okay? These four gametes are produced by one individual. Another individual is producing the another four gametes. So these gametes are similar to one another. तो अब हम लोग क्या करते हैं? F2 जनरेशन में पीनट स्क्वायर बनाते हैं. पीनट स्क्वायर में हम लोग अपर रो में लिखते हैं मेल गैमेट्स, नीचे के रो में हम लोग क्या लिखते हैं? अबाउट द फीमेल गैमेट्स. So let us take the consideration of these gametes in this Punnett square. Punnett square में हम लोग क्या करेंगे? इन gametes को लिखेंगे. So starting from the first gamete, that is the capital Y, capital R. Second है capital Y, small r. Third one is the small y, capital R. फोर्थ है स्मॉल y, स्मॉल r. जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने लिखा है उसी सीक्वेंस में हम लोग नीचे लिखेंगे. दिस सेक्शन or this box is for the gametes one. These are the gametes of female and here is the gametes of male.
तो यहाँ पे गैमेट्स रहेंगे मेल के। किस तरह से रहेंगे? अगेन द सेम सीक्वेंस, कैपिटल आर स्मॉल सॉरी कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। इस तरह से सेम सीक्वेंस में क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। एंड नेक्स्ट कंबाइन दीज गैमेट्स। ओके, तो फर्स्ट हम लोग गैमेट्स कंबाइन कर रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन। जब कॉम्बिनेशन आता है तो हम लोगों को क्या करना है? रिमेम्बर वन थिंग, वी हैव टू कंबाइन दी वाया द अल्फाबेटिकली। y के साथ r है तो हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे y r। ओके, फर्स्ट कंबाइन द y, नेक्स्ट कंबाइन द r। तो यहाँ पे क्या है? कैपिटल Y है, इसी के साथ क्या रहेगा? कैपिटल Y। सो कंबाइन दीज टू, कैपिटल Y नेक्स्ट R। ओके, कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R, कंबाइन दीज टू। नेक्स्ट कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r। नेक्स्ट वन कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R। नेक्स्ट कैपिटल Y, यहाँ पे क्या है? स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग करेंगे दिस वन एंड दिस वन, कैपिटल Y है, कैपिटल R स्मॉल r। नेक्स्ट कैपिटल Y स्मॉल r। ओके, नेक्स्ट कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। लास्ट में क्या है? कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल r। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग लेंगे कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R then कैपिटल R। Combine this one with the last one, small y कैपिटल R स्मॉल r। ओके, then combine कैपिटल Y यहाँ पे है, नीचे क्या है? स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग ले रहे हैं कैपिटल Y स्मॉल r। ओके, नेक्स्ट के बाद हम लोग ले रहे हैं स्मॉल दिस वन और थर्ड वन, दैट इज द स्मॉल y और ऊपर क्या है? यहाँ पे कैपिटल R, यहाँ पे क्या है? स्मॉल r। लास्ट में क्या रहेंगे? दोनों स्मॉल है, स्मॉल y स्मॉल r कंबाइंस विद स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। तो इस तरह से हम लोगों को कितने इंडिविजुअल्स मिलते हैं? 16 individuals are obtained. Remember the 16 individuals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 individuals इस तरह से हम लोगों को मिलते हैं. But out of these 16, how many of them are the originals one? Original parent. Original parent हमारे क्या थे? Yellow round and green wrinkle. These are the original parents. Yellow round और green wrinkle. तो येलो राउंड और ग्रीन रिंकल के कितने हम लोगों को यहाँ पे इंडिविजुअल्स मिलते हैं? सो लेट अस टेक द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने देखा था 4 इंडिविजुअल्स मिले थे, 4 इंडिविजुअल्स में से 3 इंडिविजुअल्स टॉल थे और 1 इंडिविजुअल क्या था? डॉर्फ था। ओके, 3:1 का वहां पे रेशो मिल रहा था। तो यहाँ पे रेशो किस तरह से मिलता है? लेट अस टेक द एग्जांपल। अब ये कैपिटल Y है तो ये क्या करेंगे? इट विल इम्पार्ट द येलो और कैपिटल R राउंड इम्पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट इंडिविजुअल किस तरह से होगा? येलो राउंड। सेकेंड इंडिविजुअल अगेन येलो है क्योंकि कैपिटल Y है और कैपिटल R स्मॉल r भी क्या रहता है? राउंड ही इम्पार्ट करता है क्योंकि जब कैपिटल R और स्मॉल r एक दूसरे के साथ में आते हैं कैपिटल R ही अपने को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। तो कैपिटल R क्या एक्सप्रेस करेगा? राउंड। तो इंडिविजुअल किस तरह से रहेंगे? येलो राउंड के ही रहेंगे। तो थर्ड इंडिविजुअल इज द सेम, येलो राउंड। ओके, फोर्थ इंडिविजुअल अगेन कैपिटल Y स्मॉल y है तो क्या रहेगा? येलो अगेन द राउंड। ओके, अगेन दिस वन द फोर्थ इंडिविजुअल अगेन येलो एंड round. Okay, but remember here the individual, that is the yellow small r क्या ये कर रहा था यहाँ पे? small r is imparting the wrinkled one. तो ये किस तरह से रहेंगे? yellow wrinkled one. Okay, अब ये किस तरह से रहेंगे? again they are yellow round. अब ये कैपिटल Y स्मॉल y क्या करता है? येलो कलर ही इम्पार्ट करता है, लेकिन R क्या रहेंगे? रिंकल्ड इम्पार्ट करेंगे स्मॉल r। तो किस तरह से रहेंगे?
येलो wrinkled. Next, capital Y, small y, again yellow. Okay, capital Y, again round. Again, capital Y, small y, yellow. कैपिटल आर स्मॉल आर में कैपिटल आर एक्सप्रेस करेगा किस तरह से रहेंगे, येलो राउंड. तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, सभी के जो है जीनोटाइप बना सकते, फिनोटाइप बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द जीनोटाइप, क्योंकि हम लोग जीन्स के ऊपर से क्या कर रहे हैं, फिनोटाइप निकाल रहे हैं. अब स्मॉल वाई जीन क्या करेगा, कैपिटल वाई क्या कर रहा था, येलो कलर इम्पार्ट कर रहा था. स्मॉल वाई कौन सा कलर इम्पार्ट करेगा, ग्रीन कलर. तो किस तरह से रहेंगे, ग्रीन के रहेंगे. नेक्स्ट, कैपिटल आर किस तरह से है, राउंड. ये भी किस तरह से रहेंगे, स्मॉल वाई है मतलब ग्रीन है. कैपिटल आर और स्मॉल आर है, इसमें से कैपिटल आर क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, सो इट बिकम्स द राउंड इन नेचर. अगेन दिस वन, अगेन द येलो राउंड. ओके, यहां पे भी क्या है, येलो है, बट हियर स्मॉल आर मीन्स इट इज द रिंकल्ड वन. यहाँ पे क्या है, स्मॉल वाई मीन्स ये किस तरह के हैं, ग्रीन. कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड. ओके, नेक्स्ट स्मॉल वाई क्या कर रहा है, येलो कलर इम्पार्ट कर रहा है. अब स्मॉल आर किस तरह के शेप है, रिंकल्ड शेप. सो हियर इट इज द phenotype of all the 16 individuals obtained via this Punnett square of the F2 generation. 16 इंडिविजुअल हम लोगों को मिल गए बाय द Punnett स्क्वायर ऑफ द F2 जनरेशन. अब ये 16 इंडिविजुअल्स में से कितने इंडिविजुअल्स जो है मैक्सिमम क्वांटिटी में हैं. रिमेंबर द फर्स्ट थिंग दैट इज द येलो राउंड. ओके, येलो राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज द 9. इस तरह से कितने हो गए येलो राउंड, येलो राउंड आर येलो राउंड. ओके, ये 9 हो गए. नेक्स्ट क्या है येलो राउंड के अलावा, येलो रिंकल्ड. सो दिस वन इज द येलो रिंकल्ड. ओके, येलो राउंड एंड येलो रिंकल्ड. नेक्स्ट क्या रहा है येलो रिंकल के बाद, दूसरा नया कॉम्बिनेशन दैट इज द ग्रीन राउंड. ग्रीन राउंड. और लास्ट वाला कॉम्बिनेशन है ग्रीन रिंकल्ड. रिमेंबर ग्रीन रिंकल्ड के जो है एक ही है लास्ट में, कहीं पे आप लोगों को नजर आ रहा है ग्रीन रिंकल्ड, नहीं. ओके, ओनली वन इज देयर दैट इज द येलो, सॉरी दैट इज द ग्रीन रिंकल्ड. यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रीन रिंकल्ड. यहाँ पे क्या है, ग्रीन रिंकल का सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, दैट इज द वन. Okay, this one is the green wrinkle. पूरे out of 16 individuals, only one individual is the green wrinkle in nature. So the ratio is the only one. But how many of the yellow round? Out of 16 में से 9 जो है yellow round हो गए, एक green wrinkle हो गया. The remaining are the yellow wrinkle and green round. कितने हैं yellow wrinkle और green round? Counted. Yellow wrinkle, first one. Yellow wrinkle, the second one, and the yellow wrinkle, this is the third one. तो कितने यहाँ पे इंडिविजुअल प्रेजेंट है ऑफ येलो रिंकल, 1 2 and 3. तो कितने इंडिविजुअल्स हो गए यहाँ पे, 3 इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट. ग्रीन राउंड के हम लोग काउंट करेंगे कितने इंडिविजुअल्स यहाँ पे प्रेजेंट है. द फर्स्ट ग्रीन राउंड, द सेकेंड इज द ग्रीन राउंड. ओके, लेट अस टेक दिस इज द थर्ड वन. तो इस तरह से ग्रीन राउंड के कितने हैं, अबाउट द 3. Okay, so now 9 plus 3 is 12, 12 plus 3 15, 15 plus 1 16. तो 16 इंडिविजुअल्स हम लोगों ने काउंट किए हैं. आउट ऑफ these 16 individuals, 9 are the yellow round, 3 are the yellow wrinkle, 3 are the green round and 3 are the green wrinkle. तो इस तरह से 16 इंडिविजुअल्स हम लोगों को मिल गए हैं. That is called as a phenotypic ratio. This is called as a phenotypic ratio. So phenotypic ratio of the dihybrid cross comes as a 9:3:3:1. Okay, so this is the ratio. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में phenotypic ratio क्या था, 3:1 था.
और डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो क्या है F2 जनरेशन का, दैट इज द 9:3:1। 9 इंडिविजुअल येलो राउंड के हैं, 3 इंडिविजुअल्स येलो रिंकल के हैं, 3 इंडिविजुअल्स ग्रीन राउंड के, और एक ही क्या है ग्रीन रिंकल का है। तो इस तरह से हम लोगों को 4 डिफरेंट इंडिविजुअल्स मिलते हैं, 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स के, किस रेशियो में 9:3:3:1। So this is the phenotypic ratio of dihybrid cross. Remember, this is the phenotypic ratio. Next हम लोग क्या लेते हैं about the genotypic ratio. हम लोग क्या लेते हैं last one, that is the genotypic ratio. Genotypic ratio हम लोगों को यहाँ पे किस तरह से लेना है? Remember one thing, genotype जब आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो जीनोटाइप हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट से कैलकुलेट करते हैं। We are starting from the first one. Which is the first one? Different genotype. The first genotype is of capital Y, capital Y, capital R, capital R. The second genotype, capital Y, capital Y, capital R, small r. ये भी अलग है जीनोटाइप। अब थर्ड जीनोटाइप कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, कैपिटल R. ओके, नेक्स्ट है कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r. ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जीनोटाइप लेते हैं कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल r। ये हो गया है, ये ऑलरेडी मैंने लिखा है। नेक्स्ट जीनोटाइप, डिफरेंट जीनोटाइप हम लोगों को लेना है। रिमेंबर, ये भी अलग है, कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल R। ओके, नेक्स्ट इसके बाद अलग जीनोटाइप है कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल r। इसके बाद हम लोग लेंगे कैपिटल Y, कैपिटल Y, दैट इज द कैपिटल Y, कैपिटल Y, येलो राउंड के लिए, येलो रिंकल के लिए कैपिटल Y, स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल r। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग ले रहे हैं बहुत द नेक्स्ट जीनोटाइप। यहाँ पे क्या डिफरेंट नजर आ रहा है आप लोगों को, दैट इज द ग्रीन राउंड, स्मॉल y, स्मॉल y। ये तो हो गया, हम लोगों ने ले लिया है यहाँ पे। ओके, दिस वन इज ऑल्सो देयर, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, कैपिटल R। नेक्स्ट जो नया जीनोटाइप है दैट इज द स्मॉल y, कैपिटल R, कैपिटल R। ये एक नया जीनोटाइप है, स्मॉल y, कैपिटल R, कैपिटल R। इसके बाद जीनोटाइप आ रहा है स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r। ओके, और लास्ट में आ रहा है आपका जीनोटाइप, ये भी हो गया है, दिस वन इज ऑल्सो देयर, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y, कैपिटल R, कैपिटल R। ये भी हो गया है। लास्ट एक बचा है, दैट इज द स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल r। इस तरह से क्या होता है, these are the 9 different genotypes. ओके, इंडिविजुअल्स में हम लोगों को 9 डिफरेंट जीनोटाइप्स मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी 9 किस रेशियो में आते हैं आप लोगों को पता करना है। तो फर्स्ट जो आता है ओनली 1। ओके, ये एक ही रहेगा इस टाइप का, कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल R, एक ही रहेगा। ओके, फाइंड आउट, कहीं पे भी इस तरह के जीनोटाइप प्रेजेंट नहीं है, ये भी एक रहेगा। और रिमेंबर द लास्ट वन, स्मॉल y, स्मॉल r, ये भी एक ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट फाइंड आउट कैपिटल Y, स्मॉल y, सॉरी कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल r कितने हैं। ओके, रिमेंबर हियर दिस इज द फर्स्ट वन। ओके, देन दिस इज द सेकेंड वन। कहीं और पे इस तरह का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है आप लोगों को, नहीं नजर आ रहा है। सो इट इज अबाउट 2 टाइम्स अपीयर। देन स्मॉल कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, this is the first time. Okay, again second is here. Okay, again it is occurs in 2 times. Okay, next capital Y, small y, capital R, small r। कितने नजर आ रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे, 1 2 3 and 4। दूसरी जगह आप लोगों को कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, रिमेंबर फ्रॉम दिस वन, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r। एक कैपिटल और एक स्मॉल, एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल। 4 इंडिविजुअल्स आर देयर, राइट डाउन ओवर हियर द 4 1। नेक्स्ट कैपिटल Y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r। कितने टाइम्स अपीयर है, ओनली 1 टाइम, सो इट इज ओनली 1 टाइम।
Next, capital Y, small r, small r. Capital Y, small y, small r, small r. This is the 1. Again here this is the 2. Okay. Next, small y, capital R, capital R. Here it is. Okay. लेकिन ये भी क्या है, एक ही टाइम अपीयर है, एडम 1. Okay. Next, small y, capital R, small r. कितने टाइम अपीयर है, 1, 2. So it is the 2. Okay. So this is the जीनोटाइपिक रेशियो. ये क्या हो गया आपका जीनोटाइपिक रेशियो. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि सारे मिला के 16 आते हैं या नहीं. 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 4 9, + 1 10, + 2 12, 13. This is the 14 and 15. Last one is the 16. तो इस तरह से कितने हो गए इंडिविजुअल, 16 इंडिविजुअल्स हो गए. लेकिन 16 इंडिविजुअल्स कितने जीनोटाइप देते हैं, 9 डिफरेंट जीनोटाइप. रिमेंबर मैं एब्रिवेट कर रही हूँ, 9 डिफरेंट जीनोटाइप. ओके. F2 के हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने जीनोटाइपिक में देखा था 3 डिफरेंट फिनोटाइप्स थे. यहाँ पे क्या है, 9 डिफरेंट जीनोटाइप्स आर देयर. ओके. दीज आर हैविंग द रेशियो in 1:2, 2:2, 4:1:2, and 1:2:1. इस तरह से याद रखना है आप लोगों को. 122, 4:1:2, 1:1. So this is the ratio, that is the genotypic ratio. आप लोग इस तरह से नंबर्स में भी याद रख सकते हैं. 122, 4:1:2, 1:1. बट ये क्या है, रेशियो है जीनोटाइप्स के. 9 डिफरेंट जीनोटाइप्स मिल रहे हैं. 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स. 4 कौन से डिफरेंट फिनोटाइप्स, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड. इस तरह से हो गया आपका जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस. डाइहाइब्रिड क्रॉस जहां पे 2 पेरेंट्स क्रॉस हो रहे हैं, दे आर डिफरिंग इन 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. सो दिस इज द होल थिंग अबाउट योर डाइहाइब्रिड क्रॉस. अगेन एक असाइनमेंट दे रही हूं. आफ्टर दैट वन कंप्लीट दैट असाइनमेंट एंड सबमिट इट अप टू द 3 days.